پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار، حشمتی شیر بے شے سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے بغا بھی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر، آپ سے بھائی؟ بس الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ کام اور کیا چل رہا ہے؟ ہاں کام صحیح ہے حضرت۔ چلو ٹھیک ہے، بڑھیا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا، جی میں نے کہا یہ جو ہے بھینسے کی قربانی جو ہے ہاں حدیث کے اندر نہیں ہے، اچھا تو یا بھینسے کا گوشت کھانے کا میری کل بات چل رہی تھی، روبرو بات ہو رہی تھی اہل حدیث سے، جی تو میں پوچھ رہا تھا اس سے، میں نے کہا بھیا یہ بتائیے آپ لوگ جو ہے اہل حدیث ہے، ہاں تو جب حدیث میں جو چیز نہیں ہے تو اسے مانتے نہیں ہے، جی تو میں نے کہا مجھے یہ بتا دو صرف اتنی سی بات کہ جب حدیث میں قربانی بھینسے کی نہیں ہے تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ جی میں نے نہیں ہے تو میں نے کہا پھر اہل حدیث کہاں پھر تم بھائی؟ اہل حدیث جو تم ٹھپا لگائے پڑ رہے ہو اپنے سینے پر جی ہم اہل حدیث ہے، تو وہ اہل حدیث کہاں سے ہو گئے؟ جی میرا دوسرا ایک اور ہے، میں نے کہا یہ حدیث سینے پر ہاتھ رکھ کر کے نیت باندھنے کی حدیث جو ہے وہ کہاں ہے؟ جی بخاری میں حدیث میں ہاں میں نے کہا دکھاؤں گا تو میرے ہاتھ دکھا دینا، جی تو میں نے کہا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا ہے ویسے بخاری میں دیکھا آپ نے؟ نہیں جھوٹ بول لیا وہ، ان سے بڑا جھوٹا مکار غدار کوئی بھی نہیں ہے، وہ جو ہے بات اگر ہوگی تو صرف لیڈیزوں کے لیے ہوگی، وہاں چیپٹر کا نام دیکھنا پڑے گا کہ باب کا نام کیا ہے۔ ہاں تو میں نے کہا دیکھوں جانکاری کروں پھر صرف خالی یہ حدیث دکھا دیں گے، چیپٹر کا نام بھی پوچھنا کہ چیپٹر کا نام کیا ہے۔ ہاں میں نے کہا تھوڑا جانکاری بھی کرنا ضروری ہے، اور سب بڑھیا ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ اچھا میں ایک بات اور جی بتائیے آپ کیا کریں؟ جب یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ بھی کھاتے ہیں جی تو کیا ہم تو بھائی قرآن کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو جس جانور کا نام لیا ہے وہ اسی کے حکم میں آئے گا، جس جانور کا نام لیا ہے جو سورہ بقرہ میں جو ذکر آیا ہے، جی جی تو جتنے بھی اب یہ اونٹ ہے یا پھر بیل ہے یا بھینس ہے، یہ سب اسی کے حکم میں آئیں گے۔ ہاں وہ تو بات آپ ہی صحیح ہے، ہمارے پاس بکری ابھی بکری بھی اسی کے حکم میں آئے گی، بکرا بھیڑ سب اسی کے حکم میں آئے گا۔ جی تو ہمارے پاس تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ سمجھو۔ اچھا ایک کال آ گیا، پتہ نہیں کس کا، لے لو لائن پہ۔ جی جی ہلو 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 جی کون صاحب؟ ہلو ہلو جی کون صاحب؟ آپ وہ بول رہے ہیں نور بھائی؟ ہاں نور حسن بول رہا ہوں، آپ کون؟ ارے ہم یہاں سے بول رہے ہیں، اتر پردیش سے بول رہے ہیں۔ اتر پردیش؟ جی جی کون سی جگہ سے؟ جی کون سی جگہ سے؟ فتح پور۔ اچھا فتح پور، یہ جو کانپور سائڈ سے؟ ہاں 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 اچھا جی بتائیں۔ سر ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا۔ اچھا کس مسئلے سے ہیں؟ عقیقہ کے بارے میں جو سوال کرنا تھا۔ اچھا جی آپ ہیں کس مسلک سے ویسے؟ ارے ہم سنی ہیں، سنی جماعت کی۔ مطلب بریلوی یا دوسرے والے؟ ارے اب سنی ہوتا کون ہے بھائی؟ ارے بھائی سنی ہوتے تو ہیں مگر وہ بھی سنی کہتے ہیں نا بھائی جان، یہ ہے مسئلہ۔ آپ میری بات کا جواب دے دیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ اب سمجھ لیں کہ جو مطلب سنت پہ عمل کرے گا وہی سنی ہو جائے گا یار، وہ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جی دیکھیے میں نے دو باتیں پوچھ لی، شارٹ کٹ میں پوچھی میں نے۔ آپ فاتحہ درود نیاز میلاد والے ہیں، بزرگان دین کو ماننے والے ہیں یا ان کا انکار کرنے والے؟ نہیں سب چیز کرتے ہیں ہم۔ فاتحہ درود نیاز میلاد والے ہیں نا؟ جشن عید میلاد النبی منایا ہوگا ماشاء اللہ۔
हाँ हाँ, फातिया वातिया भी देते हैं और फातिया भी दिया है 12 वफात पे। 12 वफात होता है कि 12 रबीउल अव्वल होता है भाईजान? अरे वो बात वही है, ऐसे 12 कैसे है? वफात से ज्यादा मतलब की मशहूर है वो। ऐसे कैसे मशहूर है यार? हाँ, देवबंदियों का जो बुजुर्ग है ना थानवी, उसने भी मना किया है इस बात को कहने से, कहेगा। कि लोग 12 पता नहीं 12 वफात क्यों बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो 12 रबीउल अव्वल बोलना चाहिए, 12 रबीउन नूर बोलना चाहिए, जश्न ईद मिलादुन नबी बोलना चाहिए भाईजान। हाँ हाँ अच्छा, ठीक। हाँ, यानी आप आला हजरत वाले हैं या नहीं? अरे हम सबको मानते हैं भाई। देव थानवी को भी? अरे जो हमारे बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, चाहे जिस मतलब ख्याल के हो, हमारे बड़े हैं कि नहीं वो। थानवी बड़ा है आपका? अरे जो हमसे मतलब पागल बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। आपने बात को घुमा दिया, लंबा कर दिया आपने, मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो आप मुकम्मल। मैंने कोई घुमा फिरा के तो बात पूछी नहीं यार भाईजान। हाँ हाँ, घुमा फिरा के मैंने बात पूछी क्या आपसे? जब मैं घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा हूँ तो आप शॉर्टकट इधर उधर क्यों घुमा रहे हो यार? मुझे बाईपास से लेके जा रहे हो अरे हाँ। यार, बाईपास पे मत घुमाओ ना। आला हजरत को नहीं मानते हो आप? कानपुर में रहते हो भाईजान। मानते भैया, हमने कहा क्या है कि नहीं मानते यार। जानते भी हो? हजरत, हाँ जानते हो ना आला हजरत को? हाँ हाँ, बरेली शरीफ के रहने वाले थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, बरेली शरीफ आपने बोला तो आपके इस लफ्ज से मुझे पहचान हो गई कि वाकई आप सुन्नी एनपी बरेलवी हैं। माशाअल्लाह। ये घुमाने फिराने वाली बात ना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे 1000 तरह के लोग कॉल करते हैं तो उनको समझना ना मुश्किल हो जाता है। नहीं, हम इसीलिए बताया कि हम मतलब मानते सब को, जो हमारे बुजुर्ग हैं। तो मैं थानवी का नाम ले रहा हूँ, या तो आप ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, और ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं जो हमारे नबी के दुश्मन हैं, है ना? जी फरमाएं। करना था, थोड़ा एक जानकारी लेना था। हकीकत जैसे बच्चे का जो है करना है, हाँ, तो जैसे हम छोटे पे ना मतलब कर पाए किसी मतलब तंगी की वजह से, या जी नहीं था कोई पैसा वैसा, हाँ, तो अब लड़का हमारा जो है तो बड़ा है, जी रहना है मतलब, हाँ, तो उसमें क्या मतलब करना है, कैसे मतलब हुक्म है, हकीकत का ये आपसे पूछना था। हाँ। तो हजरत इसको ना आपके यहाँ जो मुफ्ती साहब होंगे वो पूरी वजाहत के साथ बता देंगे। इसके बारे में मुझे ज्यादा मतलब पूरा इल्म नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से आधी अधूरी बात बताऊं और आप उसी पर अमल करें, तो उससे मैं भी गुनाहगार ठहरूंगा। ठीक है? सही बात है, बिल्कुल। नहीं, जो आपको मतलब है मालूमात आप बता दीजिए। हाँ, नहीं देखिए, अकीका जायज है, इसको कोई अगर नाजायज बताए तो सामने आए, है ना? बाकी इसमें किस तरह इसको हमें अंजाम देना है वो फिर उलमाए किरामी बताएंगे ना हजरत। तो आप हकीकत तो वो वहाबी देवबंदी भी करते हैं शायद। आलिम नहीं है क्या आप? हाँ हजरत, मैं आलिम नहीं हूँ, गैर आलिम हूँ। हाँ हजरत। हाफिज भी है? हाफिज भी नहीं हूँ, बस एक सादा सा इंसान हूँ, उलमा अहले सुन्नत की जूतियां सीधी करता हूँ। जी बेशक। अच्छा। हाँ, सादा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। तो मतलब आप हाफिज भी नहीं है ना आलिम है? जी हजरत, मैं कुछ नहीं हूँ, 0 बटा सन्नाटा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, सुन्नियों का एक जर्रा हूँ। चलिए, अच्छा थोड़ा एक और है जी। वजू में गुस्ल में कितने फराइज होते हैं हजरत? अब ये तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं या क्या है? पहले इस बात की वजाहत करना है। नहीं, वजाहत नहीं, ये मतलब सवाल। ये तो मैं खुद देवबंदियों से मालूम करता रहता हूँ यार। आप पूछ सकते हैं ना? चलिए बिल्कुल पूछ सकते हैं। वुजू में 4 फर्ज हैं। जी जी। 4 फर्ज हैं, 4। जी जी। वुजू में। और गुस्ल में हजरत? गुस्ल में 3 है। जी। हाँ, बहस में आएंगे तो मैं लटका देता हूँ उल्टा। जी। बहस में अगर कोई आता है, चाहे कितना ही बड़ा देवबंदियों का मौलवी हो, मैं उल्टा लटका देता हूँ उनको।
میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو الحمدللہ یہ سب یاد کرا کے رکھا ہے. اچھا. ہاں اگر امتحان بازی پہ آئیں گے تو پھر میں بھی بہت کچھ پوچھ سکتا ہوں. خالی میں سوال کا جواب نہیں دیتا بلکہ اس سامنے والے سے کہہ دیتا ہوں اگر سوال کر رہے ہو تو جواب دینے کی بھی ہمت رکھنا. اور میرا جو سوال ہوتا ہے بڑا کر رہا ہوتا ہے, اٹک جاتا ہے وہیں. ابھی 3-4 دن پہلے ایک بھائی سے بات ہوئی, اس نے بہت سارے سوال کیے, بہت ساری میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا آپ دیکھیے آپ نے جب سے اب تک سوال ہی کرے ہیں, میں صرف 2 سوال پوچھتا ہوں کہ جواب دیں گے؟ بولے ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے جواب دو. دونوں میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا گیا. سوال کیا پوچھا تھا؟ میں نے سوال یہی پوچھا تھا کہ غسل میں فرض کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں, وہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں. اچھا اچھا. ہاں تو وہ بتا ہی نہیں سکا بیچارہ. پھر میں نے کہا پھر جو لاسٹ والا سوال تھا جو ان کے مفتیوں سے تک نہیں بتتا ہے, معلوم نہیں ہوتا ہے ان کو, تو پھر میں نے چھوڑو یار وہ سوال تو آپ سے بتائے گا ہی نہیں, کر کے کیا فائدہ. تو بولے نہیں کرو, جب اس والے کا علم ہوا ہے جانکاری ہوئی ہے تو اس کا بھی جو ہے مجھے علم ہوگا جانکاری ہوگی. تو پھر میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے وہ یہ ہے, بتائیے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. بولا ایسا کرنا ہوگا ویسا کرنا ہوگا. میں نے کہا کیوں کرنا ہوگا؟ تو کہ وہ واجب چھوٹ گیا. میں نے کہا یہاں پر جو ہے واجب ہوا ہی نہیں بھائی, یہاں تو حکم ہے کہ اس کام کو کرے, افضل ہے یہاں تو. بولے اچھا. میں نے کہا جی ہاں. اصل میں نور حسن بھائی جی یہ لوگ اس طرح سے اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ میرا بھی سوال, میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں, لوگوں سے باتیں کر کے ہی آ رہا ہوں. اچھا اچھا. تو یہ لوگوں کو گمراہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سبھی لوگ جنت میں جائیں گے. ہاں یہ کیول بریلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. تو میں نے ابھی کہا ان سے, میں نے کہا بھیا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے نبی کو سچا مانتے ہیں ماذ اللہ, کیا مانتے ہیں؟ جی ماذ اللہ رب العالمین جھوٹا مانتے ہیں ماذ اللہ. میں نے کہا تو بولے نہیں سچے ہیں نبی. تو میں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے ہیں سب جنت میں جائیں گے, نبی کہیں کہ ایک جنت میں, یہ کہیں سب جنت میں. تو بتائیے مجھے جھوٹا کون ہے؟ جی جی جی. تو جن کا رب ہی جھوٹا ہو حضرت, نبی خلاف بول رہے ہیں. بولے جن کا رب ہی جھوٹ بول سکتا ہو, ہاں ہاں ہے نا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بتائیے ہمارے نبی جھوٹے ہیں ماذ اللہ کہ نہیں؟ تو میں نے کہا میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں ہے. تو میں نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب جائیں گے تو وہ تو نبی خلاف ہو گیا. جی تو نبی خلاف ہو گیا, تو میں نے کہا جو نبی خلاف بولے گا وہ جنت میں جائے گا. جی. یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی یونس بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کہی. تو آج ہماری سمجھ میں یہ بات آئی. جی تو میں نے کہا سمجھیے میرے بھائی یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں کہ اگر یہ سب کو نہیں کہیں گے کہ جنت میں سبھی جائیں گے تو ان کے جال میں نہیں پھنسے گا کوئی بھی. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جال میں پھنسانے کے لیے سب کو جنتی کہتے ہیں یہ لوگ, جی اور حق بات نہیں بتاتے کہ حق پر کون ہے. ارے ہاں. یہ کہو نا کہ حق پر ہم ہیں تو ثبوت پیش کریے, ثابت کریے. جی کہ آپ نے تو اپنے نبی کو ترجمہ سورہ فتح کا جو انہوں نے کیا ہے وہ کتنا غلط کر دیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف. حضور کو گناہگار جو ہے ثابت کر دیا. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا, کل بھی میری بات ہوئی تھی ایک سے, حضور کو جو ہے 30ویں پارے میں جو ہے سورہ فتح وہاں سے ہٹا ہوا قرار دے دیا. جی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا نبی سے کب گناہ ہوئے تھے جو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کروں. اور نبی کیا معصوم نہیں ہوتے ان کے نزدیک؟ جی معصوم. اور اگر معصوم ہوتے ہیں تو پھر معصوم کی تعریف کیا ہے؟ ہاں ہے نا. قرآن ہو بالکل. اگر نبی معصوم نہیں ہے تو پھر گناہگار ہے. جی جی معاذ اللہ رب اگر العالمین. گناہگار ہے تو پھر معصوم نہیں ہے. جی جی ہے نا. جی جی. ہاں معصوم کی تعریف کیا ہے؟ اب اصل میں کیا ہے, جب یہ پھنستے ہیں تو بھاگتے ہیں پھر یار, یہ بات نہیں کرتے ڈھنگ سے. جی 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 صحیح بات ہے. اصل میں ہماری عوام کا بھی معاملہ یہ ہو گیا ہے جتنا پیسے سریا اٹھا ادھر جمع نہ کروں گا. جی اصل میں ہماری عوام جو ہے وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتی. ہاں اگر کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں تو وہ بیچارے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے پڑھتے. جی جی. اور یہ 95% میں گارنٹی دے رہا ہوں, 95% اب بھی سنی حنفی بریلوی ہیں لوگ. جی جی جی. علم نہیں ہے. ہاں میں ہر ایک انسان کو, کئی سارے بھائیوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں بھی دیوبندی میں لوگ دھوکے میں ہوتا ہے, ان کے ناپاک اور گندے عقیدے سے واقف ہوتا ہی نہیں ہے, ناواقف ہوتا ہے, بے خبر ہوتا ہے. اگر ان کے گندے عقیدے کو جان لے گا تو ان کی طرف جائے گا ہی نہیں. اور یہ چھپاتے ہیں اپنے گندے عقیدے کو, اور ہم بتاتے ہیں اپنے عقیدے کو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. بھائی حق تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا. جی. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں جی کہ
थोड़ी सी अभी बात हुई थी मेरी सुबह ही सुबह फोन पर। अच्छा हालांकि अभी मैं अपना चैनल नहीं चला रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ ये काम, थोड़ा लोगों को जोड़ रहा हूँ कि मैं बैठ करके उनसे बात करूँ, जी लाइन पर लेकर के मामला चले इनका। जी मेरी सुबह बात हुई, कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि क्या नबी पहले से थे, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो उनका वसीला लगाया था। जी तो मैंने कहा कुरान का पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान में 81 नंबर आयत है, जी मैंने उसे पढ़ी है। अल्लाह ने क्या फरमाया उसमें हाँ फरमाया है कि हमने सारे पैगम्बरों से अहद लिया था। मैं बेशक मफहूम सुना रहा हूँ, कुरान का मफहूम सुना रहा हूँ, जी क्यों कहते हैं मुझे थोड़ा ध्यान से नहीं उतर रहा है कि हमने सारे पैगम्बरों से अहद लिया कि अगर मेरा नबी तुम्हारे बीच आए तो उसकी तुम मदद करना और उस पर ईमान लाना। तो ये कहाँ बात हुई थी? बोले ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने यही तो समझना है। आप कह रहे थे कि नबी पहले नहीं थे, तो मैंने कहा सारे नबी भी मौजूद हैं, हमारे नबी नहीं सारे मौजूद हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के। तो असल में क्या है खुशबू भाई, ये लोग नूर हसन भाई, जी हाँ ये लोग जो है न तो किसी दूसरे को इल्म सीखने देते हैं न खुद सीखते हैं। ये असल में ये है मामला। जी हजरत। ये भाई लाइन पर है कि काट के चले गए वो? हजरत वो हाँ है, ये 250 वाली है। अच्छा सुन रहे हैं? हाँ वो लाइन पर ही होंगे शायद। लाइन पर हो क्या भाईजान? हाँ लाइन पर। ये तहकीक करनी चाहिए। देखो असल में क्या है कि हमको इस दुनिया में भेजा इसलिए गया है ताकि हम अपनी आखिरत संभाल लें, बना लें, अपनी बिगाड़ लें, जो भी करना है वो कर लें अपना। तो अब हमारी आखिरत ही बिगड़ गई यहाँ रह करके, सबको सही करते करते इन्होंने कहा सब सही है सब सही है, तो फिर हमारी आखिरत खराब हो जाएगी। तो जी। कैसे हमारा मामला बनेगा जी? सही बात है। हाँ तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अब मैं भी खुद, मैंने आपको पहले भी बताया था नूर शर्मा भाई, जी पहले मैं भी यही कहता था कि सब लोग सही है यार, जमात में नाम लिखवा दिया मैंने। लेकिन हमारे एक फूफा जी थे, उन्होंने कहा भैया ये लोग सही नहीं है, लेकिन असल में उनको इतना इल्म नहीं था कि उन्होंने बताया नहीं था मुझे कि इनमें क्या खराबी है। जी तो जब मालूम पड़ा तो फिर मैं अहले हदीस बन गया। फिर अच्छा ये इन लोगों से रास्ता कायम हुआ। वो बलात्कारी जो है, क्या नाम है उसका, मौलाना जर्जिस, हाँ जगदीश बलात्कारी, उसकी तकरीर सुनने के बाद में मैं नूर हसन भाई जी। अहले हदीस बन गया। जी अब मसला यहाँ पर अटक गया कि जब उसने ये कहा कि हिंदू महात्मा हो जाता है हाँ। और मुसलमान रहमानियत अख्तियार करता है, हालांकि वो जुमला गलत था उसका, हाँ हमारे यहाँ फकीरी लाइन अख्तियार की जाती है, जी तो इन दोनों को हराम की रोटियां तोड़ने को मिलती है, इसीलिए ऐसा करते हैं ये। हाँ तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो बुजुर्ग पहले से थे और उनके बारे में नॉलेज है कि वो कभी खाने के ऊपर नहीं मरे। हाँ तो मैंने कहा ये तो झूठ बोल रहा है। तब मैंने तहकीक करना शुरू की थी नूर हसन भाई, हाँ समझ रहे हैं? जब मैंने इनको फिर शिकस्त देना शुरू की है, कुरान का तर्जमा लेकर के आया, अपना भी इनका भी, इनकी किताबें भी, सब कुछ, सब मामला समझ में आया। तब मैं पलट करके, पहले भी मैं बरेलवी था, पलट के आया, मैंने कहा अब तो बाकी में हक पर यही है, यही जमात है। और मैं ना दूसरी दलील दे रहा हूँ, मैं मौलाना कौकब नूरानी साहब की आपने सुनी होगी जी 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 कि उन्होंने कहा है कि आग में वो कड़ाव में तेल डाल लो हाँ जी और एक में तुम कूदो एक में मैं कूद रहा हूँ। 12 साल करीब होगी उनकी तकरीर की हुई इसको। हाँ और किसी भी बद मजहब ने, जितने 72 फिरके वाले हैं, उन्होंने किसी ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया उसको, आज तक नहीं किया। हाँ। तो मैंने कहा अगर सच्चे हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेरे रब ने मदद की थी आग से, क्या तुम्हारी मदद नहीं करेगा? तुम ईमान वाले नहीं हो क्या? मैंने कहा बेशक करेगा। तो उनका चैलेंज कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं आज तक ये लोग? जी तो इससे पता चलता है कि ये लोग हक पर नहीं है जी। और हमारी अवाम जो है वो समझ नहीं पा रही इनको। आवाम असल में धोखे में है बेचारी। जी जी। हाँ तो यही मामला है इनकी नमाजें देख करके। जैसे वो मामला है ना मछली का, जी मछली वो देखती है कि यहाँ पर केचुआ लगा हुआ है हाँ और वो केचुआ खाने के लिए जाती है जी और फंस जाती है वो कांटे में। अब वो कांटा तो इनको दिखता नहीं। जी यही मामला है कि नमाज के बहाने से लोगों को ले जाते हैं ये, हाँ। और नमाज के बहाने से लोग समझते हैं, नमाज को तो अच्छा समझते हैं ना, जैसे मछली गिजा समझती है केचुए को। नमाज का एक ऐसा हथियार है इनके पास कि हाँ कोई भी मुसलमान नाम का इंसान नमाज का इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल, और उसी में फंसता है आदमी। वो एक हथियार है, वो एक कांटा है इनका मछली पकड़ने वाला। जी 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 हाँ, वही बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये अपने बारे में नहीं बताते कि हमारे मौलाना क्या लिख गए। हाँ अब सुबह मैं राहिल भाई की वो सुन रहा था करीबन 4 बजे करीब मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा। और बताओ मक्कार जो नबी के लिए लिखा है उसने कि इससे मदरसा देवबंद का रुतबा मालूम पड़ता है, हाँ। देवबंद के मदरसे का। तो बार बार पूछ रहे हैं भैया कैसे रुतबा बढ़ गया ये बताओ, जब सीखी तभी तो। जी अब जवाब नहीं दे पा रहा। इतने बड़े मक्कार हैं, न तो तौबा करते हैं ये और ना जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। हाँ तो ये है कि बस अल्लाह पाक रहम करम फरमाए इन जालिमों से।
जी। जो बेचारे हमारे अनजान लोग हैं उनके ईमान की हिफाजत फरमा दे आमीन। और उनको इल्म हासिल करा दे अल्लाह पाक। बस मैं तो यही दुआ करता हूँ। और तो बड़ा भाईजान आप तो बता दो भाई। कि आप किस मसलक से हैं भाईजान? हेलो कानपुर वालों, हेलो। जी आप तो बता दो भाईजान। अरे बता दीजिए तो भैया, पहले बताए आप भी अच्छा बता दीजिए, मतलब बताया। देखिए एक बात बता दूं, आप बीच बीच में ना रहें, तो सुलह कुलिया वाला मामला ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ? बीच बीच में ना रहे, ये ना समझे कि अरे यार देवबंदी और बरेलवी ये मौलवियों का झगड़ा है, ये ना समझे ये ईमान और अकीदे का झगड़ा है, ईमान और कुफ्र का झगड़ा है। हाँ ये याद आ गया हमारी और आपकी जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, जी। समझना भाईजान? हाँ। ये ईमान और कुफ्र का झगड़ा है, हुजूर से मोहब्बत और नफरत का झगड़ा है। जी हजरत जी। मुझे ये कुरान की एक आयत का मफहूम याद आ गया है हाँ कि जो लोग ईमान और कुफ्र के बीच में नई राह निकालना चाहते हैं, हकीकत में यही काफिर हैं। जी 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 समझ रहा है? जैसा तो कहते हैं ना कि ये भी सही और वो भी सही। हाँ तो उनके लिए कहा है कि हकीकत में यही काफिर हैं जी जो ईमान और कुफ्र के बीच में निकालते हैं। बोले यार ईमान वाले वो भी सही है और ये जो है ये भी सही है यार, तो उनके ताल्लुक से ये कुरान में आयत है। ये वही बीच वाले, ये वही है बीच वाले जी। तो बीच वाले वही लोग हैं ये, तो सबको सही कहते फिरते हैं। हाँ और हमारे हजरत ने किसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी है जी, बहुत ही बेहतरीन। उसके ऊपर एक कहानी के ताल्लुक से मुझे समझाया, मतलब बहुत सारे लोगों के सामने बयान किया था उसको जी। शायद मैं उसको अपनी कई ऑडियो में बता भी चुका हूँ। कौन सी? पता नहीं किस किस से मेरी बात होती है, जब कोई इस तरह की बातें करता है तो फिर मैं उसे सुना देता हूँ ये वाला वाकया। जी जी जी। कौन सा? है वो एक बादशाह था, उसके यहाँ वजीर रहता था। जी जी। तो एक हिजड़ा आया उसके यहाँ। तो ये नहीं मैंने सुना, वो पढ़ रहे हैं सर? हाँ सब उस पर पड़ी हुई है यूट्यूब पे ही, मैंने नहीं सुना तो शायद। चलो खैर अब बता दें। हाँ तो उसे आके बलगला दिया जी कि आप इसे इतना पैसा देते हो, इतना ये करते हो, इतना वो करते हो, करता कुछ नहीं, कि इससे ये सवाल पूछो, इसे कुछ नहीं मालूम। अच्छा अच्छा। हाँ तो बादशाह को सवाल आके बताए कि इससे पूछना कि जमीन का बीज सेंटर क्या है और कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं और आसमान में सितारे कितने हैं। अच्छा अच्छा। कहा यही। तो अब बादशाह ने जो है कहा उस वजीर से, यही पूछना शुरू कर दिया। हाँ और बोले नहीं तो फिर तुम्हारी इतने दिन की जिंदगी है, मतलब समझे? तो बादशाह तो बादशाह होते हैं, उनका तो जो भी हुक्म होता है वही होता ही है। अब बहुत ज्यादा फिक्र में, टेंशन में कि यार अब क्या होगा। वजीर? हाँ जी। तो उन्होंने किसी किताब में ये पढ़ा ही नहीं। भाई आदमी को कभी कभी ये होता है कि भाई उतना इल्म जो है होता है इंसान को कि जो हमने किसी से सुना, किसी से पढ़ा, ये अल्लाह ने तो अता किया। क्यों? हाँ तो धोबी था उनका वजीर का भाईजान। तो उसने कहा क्या बात है? उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे बात है। तो क्या अच्छा इतनी सी बात में टेंशन में पड़े हो? जाओ कह दियो, ये मैं क्या जवाब दूं, मेरा धोबी जवाब दे देगा। अच्छा। हाँ समझे जी। कोई बात नहीं, टेंशन फ्री हो गए। तो कह रहे इतनी छोटी सी बात का मैं क्या जवाब दूं, मेरा धोबी है वो जवाब दे देगा। हाँ अच्छा। तो गया वो, आ गए वक्त मुकर्ररा पे जी। खूंटा काट दिया उन्होंने। तो वहां जाके मैदान में जी सबको बिठाया, सब आए तो बोले, उसने कहा कि देखो जमीन का बीज सेंटर यही है, अगर इसको कोई जो है शक हो तो वो इससे नपा लो, ये बैठा है। समझे? हाँ इससे नपा लो, ये बैठा है।
यार मैं कहाँ तक नापूंगा, मर जब वो नापते नापते। हाँ मानना पड़ गया फिर। हाँ, और उसने पूछा था कि वो आसमान में सितारे कितने हैं, हाँ तो उसने कहा ये गधा खड़ा है, हाँ इसने जितने बाल इस गधे पे हैं इतने आसमान में सितारे हैं, अगर कुछ कम बढ़ती हो कोई शक हो तो इससे गिनवा लो ये बैठा है। देने वाले हो। हाँ समझे, आजकल हम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, जी जी समझे, थोड़ा बहुत उनसे भी कुछ कराया करें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हम ही ये बात तलाश करते रहते हैं, हम ही तलाश करते रहते हैं, अरे भाई बिल्कुल करना है वो हमें ही करना है। हाँ, बिल्कुल उसे सही साले कह को डालो चक्कर में। रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैं कल कह तो दिया मैंने तो यही रुको बता तो। रहे थे। जी अब बोले कि मतलब दुनिया में औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं। जी अब वो बेचारा गिनते गिनते परेशान, जी समझे, कई बार उसने गिने तो बात कैसे करेगा वो? हाँ, तीसरी चौथी बार में उस हिजड़े पर डंडा पकड़ दिया। उस हिजड़े पर डंडा पकड़ दिया, साले मैं परेशान हूँ, हमको परेशान तू ये कहला देख कर फिर यार, कभी मर्द ज्यादा हो जाते हैं, कभी औरतें ज्यादा हो जाती है, साले कभी इधर खड़ा हो जाता है, कभी उधर खड़ा हो जाता है, और भी डंडा बजाया, बोले गिनती पूरी नहीं हो रही है, गिनती पूरी नहीं होने दे रही। साहब ये साला कभी इधर खड़ा हो जा करा, कभी उधर खड़ा हो जा करा। अच्छा, गिनती में जो है कभी इधर खड़ा जाता होगा वो, हाँ, कभी इधर खड़ा हो जाता होगा, और भी डंडा पहला उसमें। डंडा पड़ना शुरू हो गया। सही हुआ तो वैसे। ये तो यहाँ का डंडा है, वहाँ भी पड़ेगा। मैदान महशर का क्या होगा, कब्र का क्या होगा, अल्लाह के अज़ाब का क्या होगा, फरिश्तों के गुर्ज का क्या होगा। जी जी जी, मेरा दिया शॉर्ट यही लोगों से ये सवाल, बहुत सवाल है, लेकिन असल में क्या जवाब नहीं देते, ये मक्कार है बड़े। हाँ, बहुत ज्यादा मक्कार, और जो पूछो वो सीधा सीधा जवाब ही नहीं देते। हाँ नहीं देंगे, नहीं दुनिया में भागेंगे कि तुम कवर पे के जाते हो, तुम क्या करते हो, मतलब उसमें जाएंगे फिर। तो मैं इसीलिए उनके घर से जवाब देता हूँ। हाँ, और देखिए मैं इसके कब्र के ताल्लुक से भी मैंने जवाब दिया था, कल की बात है ये। जी, मैंने कहा ये बताइए जमीन और आसमान का मालिक कौन है? बोले कब्र पर मांगना जायज है कि नहीं है? मैंने कहा हाँ है, सबूत मैंने कहा कुरान हदीस से भी है, वो अल्लाह से, मैंने कहा जो है हाँ, हदीस से साबित है भाई। हाँ, कुरान से नहीं है। तो मैंने कहा जमीन आसमान का जब अल्लाह मालिक है तो सहाबी ये रसूल को जमीन जो मांगनी चाहिए वो अल्लाह से मांगनी चाहिए जी। कौन सी जमीन? मैंने कहा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वसीयत की थी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि मेरा जनाजा जब तैयार हो जाए तो ले जाकर के वहाँ रखना, और जाकर के ये अर्ज करना कि या रसूलल्लाह आपका गारे यार आपके बराबर में जगह चाहता है जी, अगर इजाजत मिले तो दफन करना, नहीं तो वरना जन्नतुल बकी में दफन करना मुझे जी। तो वहाँ पर यही आवाज आई, रोज़ा मुबारक का गेट खुला और आवाज आई कि यार को यार से मिला दो जी, बेशक। तो मैंने कहा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी से जाकर के मांग करके तो शिर्क कर दिया माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो मैंने कहा कितने बड़े मक्कार हो तुम्हें, सब कुछ होने के बाद मालूम और उसके बाद भी फिर सवाल करते हो। तो मैंने कहा ये तरीका वो जो है ठीक नहीं है असल में, तहकीक करो, जानकारी करो। अरे नहीं तुम यार मुशरिक हो, अरे तो मैंने चलो ठीक है तुम्हारे हिसाब से हम मुशरिक हैं तो फिर हमारे पीछे नमाजी क्यों पढ़ते हो यार, तुम मस्जिद भाग के पढ़ते हो तुम जी। अरे तो ये बरेलवी अपनी मस्जिद में नमाज नहीं, तो तुम मस्जिद में जाकर कर क्या रहे हो मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ के? अरे हम वो हैं जो तुम्हें डंडा लेके भगाते हैं और तुम वो हो सारे जो है जबरदस्ती बुला के लेके जाते हो। हाँ, मस्जिद नबवी से भगाना, इन शैतानों से मस्जिद को पाक करना, ये हमारे रसूल की सुन्नत है, ये हमारे सहाबा की सुन्नत है, मेरे नबी के साथ। ठीक है। और दूसरी बात सुनो हजरत, एक मिनट, और ये जो जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं जी, ये इन नजदियों की आदत है। हाँ वो तो है ही, समझे। जिस मस्जिद को हुजूर ने फुकवा दिया था, तोड़वा दिया था, उस मस्जिद को दोबारा बना के इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जमा करना शुरू किया। जी 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 जी, समझे जी। और उसमें हुजूर के लिए भी दावत दी कि आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, समझे, एक निशानी बनाने के लिए। जी जी, हाँ, तभी अल्लाह ने मना कर दिया कि महबूब मस्जिद में भी नमाज पढ़ाई थी। हाँ, तो ये वो बाबरकत मस्जिद है जिसमें हुजूर ने नमाज पढ़ाई है, कुछ ना कुछ तो नाम लेते ही। हाँ जी जी, तो एक बात पर वो नूर हसन भाई ने मैंने कोट कहा, मैंने कहा भाई ये बताइए
कुरान में मना फरमाया कि मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो हाँ। और फिरके मत होना। हाँ तो आप फिरके हो कौन रहा है मुझे ये बताएं। बोले तुम हो रहे हो बरेलवी 100 साल से। मैंने कहा चलो ठीक है, इसका सबूत मैं दे रहा हूँ, अब हम पुराने के नहीं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ गुम्बद बनाना कब्र पर क्या है, हराम है, शिरक है, क्या है, जायज है ना जायज है? अरे कि वहाँ तो शिरक होता है। तो मैंने कहा वो शिरक हो गया। मैंने कहा नबी की कब्र अनवर पर गुम्बद बना हुआ है, कब का? पुराना। तो इससे साबित ये हुआ कि तोड़ने वाले बाद में आए, बनाने वाले पहले थे। हाँ तो इससे साबित ये है कि हम पुराने हैं, तुमने फिरके नहीं बनाए। अब जब तुमने फिरका नया बनाया तो तुमने अल्लाह की नहीं मानी, तो हमारी क्या मानोगे? जी बिल्कुल क्लियर है ये मामला। जी जी बिल्कुल। और फिर भी ये मक्कार मानते नहीं, ये भी हाँ। तो है ताज्जुब की बात। सही बात है। देखो अल्लाह ने, इसीलिए मैं पारा नंबर 1 में मैंने दिया इसका वो मफहूम ये है कि नबी जिन लोगों की किस्मत में कुफ्र है जी समझा या ना समझा है, जी जी के लिए जी जी। तो बस समझ लीजिए कि अल्लाह ने जब नबी से ही कह दिया तो हमारी। और एक बात और कहते हैं ये शैतान जी कि अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी जो मुर्दा है तुम उन्हें नहीं सुना सकते। हाँ दिखाते हैं ये। तो मुर्दा से मुराद ये नहीं है कि वो मर गए, मुर्दा से मुराद ये है कि उनके दिल मुर्दा है। जी जी हाँ वो है तो ना। कब्र में जाके थोड़ी सुनाते थे हुजूर, कब्र में जाके थोड़ी कहते थे कि तू ईमान ले गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही है अल्लाह को एक मान है बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जिंदा पर कहते थे, बिल्कुल सही। और तू रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी मान, ये थोड़ी कहते थे हुजूर। तो इनके दिल मुर्दा थे, इसलिए उनको मुर्दा जिनके कहा दिल मुर्दा थे उनको मुर्दा कहा गया है। जी 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 यही है बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये शैतान उन सीधे साधे भाइयों को बहकाते हैं जो बेचारे वहां तक की सोच भी नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होगा। वो इल्म नहीं है ना असल में। पढ़े लिखो के आप सामने आके बोलते नहीं, साले शैतान कहीं के। अपनी जुबान ऐसी है कि मैं फिर ना इन लोगों पे बहुत ज्यादा गरज जाता हूँ कभी कभी। वो तो खैर बात सही है आपकी, लेकिन खैर फिर भी हमें थोड़ा वो करना है कि ज्यादा हजरत जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा ना, जो वफादारी करेगा समझे, उसका दिल जलेगा हजरत। और आधा आदमी तो गाली भी बस देता है, मैं तो बहुत कंट्रोल करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे जैसे सारे आदमी तो बहुत। हाँ मेरा भी आवाज इतनी कड़क है कि लोग कहते हैं तुम यार मुझे ऐसा लगता है झगड़ रही हो तुम। मैंने कहा बहुत कंट्रोल करता हूँ भैया। मैंने कहा यार नबी के चाहने वालों का मामला ही यही है कि यार गुस्सा ज्यादा रहता है। कहीं देखो हजरत, अब दुनिया का मामला ले लो। जी जी जब हम अपने माँ बाप के लिए गलत नहीं सुन सकते, अपने किसी रिश्तेदार के लिए नहीं सुन सकते, या जिस पार्टी को हम वोट देते हैं उस पार्टी के लिए हम नहीं सुन सकते, आपस में झगड़ जाते हैं कि नहीं वो ऐसा है वो ऐसा है, उसने उसकी ये मदद की और उसने ये मदद की। तो यार यहाँ तो या मेरे नबी मालिक जन्नत का मामला है, यहाँ तो अल्लाह के महबूब का मामला है यार। बिल्कुल बिल्कुल सही। जब दुनियादारों के लिए हम लड़ झगड़ जाते हैं, यहाँ तो मैं अपने नबी के लिए क्यों नहीं। उसका मामला है जिनके सदके जन्नत मिलेगी। आज मैं सोया ये कह रहा था, कह रहे थे हमारे खुशबू भाई हैं, वो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं मेरे साथ। हाँ उन्हें पकड़ के लाते हैं उन्हें समझाने के लिए। तो चलो यूनुस भाई के पास चल रहे हैं। तो मैं आज कह रहा मुझसे कह रहे थे यूनुस भाई जब आपसे आपकी बात लोग सुनना नहीं चाहते तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा खुशबू हाँ ये मोहब्बत का तकाजा है, वो समझा रहे हैं, वो सोचते हैं यार लोग समझ जाए, यूनुस भाई हमारे बताएंगे समझाएंगे इसको समझ में आएगा। इस्लाम के अंदर मैंने कहा जबरदस्ती नहीं है, नहीं समझना कोई बात नहीं। यूनुस भाई तुम जो है मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हारी बातें जब लोग नहीं सुनते। मेरी थोड़ी है ये जी मेरे अल्लाह के रसूल की बात है, वो मेरे रब ने जो इल्म दिया है वो इन्हें बताना है बस जी। तो बोले कि तुम ज्यादा इनसे बात मत किया करो। मैंने कहा भैया खुशबू भाई मेरी जब तक जान है तब तक मैं करूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों न लगे, चाहे मुझे गोली क्यों न लगे, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और जब भी हाँ कि जब ज्यादा दुश्मन बढ़ जाते हैं तो उसमें यही होता है कि ये अकेले आदमी के साथ पर यही होना शुरू हो जाता है। जी 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 जी। अरे यार हजरत आप तो कुछ हॉबी, खैराबादी आप तो कुछ हॉबी, मेरी तो कोई हैसियत, हाँ मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। और देखो एक बात और जहन में रखो, आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात और ध्यान में रखो कि जब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक अल्लाह की रजा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी तो सोच यही है कि बिस्तर पे मौत ना आए, चलते फिरते अपनी मौत ना आए। बिल्कुल जब भी मौत आए तो रसूलुल्लाह के किसी दुश्मन से लड़ते हुए मौत आए। समझे, इस मौत से 100 गुना और लाख गुना करोड़ों गुना बेहतर होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये तमन्ना तो है। हाँ अगर किसी जालिम के हाथ से मारे गए, मेरी ये तमन्ना भी है कि मेरा रब मुझे
अपने महबूब का दीदार, कब्र अनवर का दीदार करा ले, बस उसके बाद मौत आए। मोमिन के ईमान की जैसी कैफियत होगी हुजूर का वैसे ही दीदार होगा जी 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 कब्र में। जी जी। और बहुत से खुश नसीब ऐसे भी हैं। नबी राजी हो जाएंगे तो मेरा रब राजी होगा। बेशक बेशक। हाँ बस तो यही चाहता हूँ मैं। हाँ कि मेरी यही तमन्ना है कि आप भी दुआ करें मेरे लिए कि जब तक मौत ना आए, जब तक कि मेरे नबी का रोजे मुबारक मेरी आंखों सामने ना आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस तमन्ना को जल्द से जल्द कबूल फरमाए। और न मौत से डर लगता है। मैं तो अब आपको सही बताऊं, सफर में भी कभी जाता हूं बस में, जी, और लोगों से वहाँ गुफ्तगू होती है जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं, हाँ, तो उनको भी अल्लाह के हुक्म से दावत देता हूँ, इस चीज की बताता हूँ उनके बारे में प्यार से। अगर समझते ठीक नहीं है कोई बात नहीं। हाँ, मौत का डर नहीं, मौत का डर नहीं है। जी जी जी, सही बात है। मोमिन के दिल में मौत का डर नहीं होता, मौत तो आनी है। वो तो आनी है। हाँ, और तो फिर ये बस अल्लाह पाक रहम करम फरमाए अपना, और इन लोगों को थोड़ा समझ। और ये भी खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह का रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो है एहसान है, सदका है कि उनका जज्बा बहुत से मोमिनों के दिल में है। क्योंकि लाखों के मजमे में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अकेले तनहा खड़े हो गए थे कि हाँ मैं हूँ मुसलमान। ऐलान लगा था कि कौन इसमें मुसलमान है। जी जी जी, कि मुसलमान तो बहुत हैं, मैं मोमिन हूँ, ईमान वाला हूँ, आका का गुलाम हूँ। यही है कि बस अल्लाह पाक अपने महबूब की सत्य में बस हमारा ईमान पर खात्मा हो, सबसे बड़ी बात ये है जी। और हमारी ये मेहनतें और काविशें जो अल्लाह पाक कबूल कर ले अपनी बात। आमीन। बस यही है कि, और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए भी वो दे कि आपकी जबान में वो तासीर पैदा करे अल्लाह पाक, मेरी में भी, कि जो लोग सुने और सुनने के बाद हक समझने की कोशिश करें। हाँ देखिए, हक वो समझेगा वही जिसके दिल में ईमान होगा, हुजूर से मोहब्बत होगी, जिसको पसंद किया। बिल्कुल हाँ, हुजूर से मोहब्बत होगी और जिसे अल्लाह पसंद कर ले। जी जी जी, समझे हजरत? जी जी। हाँ, अभी 4-5 दिन की बात है, 10 तारीख की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने कॉल किया, अली मिर्जा का फॉलोवर था, उसी की तकरीर सुन के बिगड़ गया था। हाँ, मैंने बताया, समझाया, इंशाल्लाह 1 घंटा दिमाग खाया और तौबा कर ली। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, अभी नई ऑडियो पड़ी हुई है 11 तारीख की। अच्छा अच्छा। हाँ, 10 तारीख में तौबा की, 11 तारीख में वो भी डाली है। तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब है, वो इन अहले हदीसों की मस्जिद में ही वो दुकान है रोड पर, तो उसी में वो डॉक्टरी करते हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब यार कुछ करिए, वो भी सुननी है वैसे। अच्छा। लेकिन अभी मामला उनका ज्यादा बढ़िया तो करना ही कहूँगा मैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब होता है दुकानदारी का। जब से मैंने बैठना शुरू किया थोड़ा सा, अच्छा, बताया मैंने उनको, तो थोड़ा वो इसकी तहकीक करना उन्होंने थोड़ी शुरू की है। अच्छा अच्छा, तो माशाअल्लाह। वो कह रहे थे भाई, मैंने कहा वो डॉक्टर साहब, मैंने कहा यार करीबन 20-25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, 20-25 लोग जोड़ दो, 1 लाख रुपए एक आदमी चंदा करके ले आए, इन शैतानों के बराबर में एक मदरसा खोल दें। मस्जिद तो इनकी बनी हुई है जी, तो मदरसा खोल, लोगों को इल्म हासिल होता रहेगा। तो उन्होंने डायरेक्ट कॉल पर लेकर के एक ऐप आता है, वो उन्होंने RCM में जुड़े हुए हैं असल में वो। अच्छा अच्छा। तो वो RCM से बात करते रहते हैं तो ग्रुप में पूरे में, तो इस तरह से बोले मुझसे ऐसा ही करो तुम भी, कि लोगों को घर पर मत बुलाओ, बल्कि उन लोगों को कॉल से ही बात करिए, फोन पर ही बात करें। हाँ, उनके हवाले पे ये सारी चीजें जो है जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कल इसी बात पर ताल्लुक से बात हो रही थी मेरी, तो वो भी बेचारे लग रहे हैं, देख रहे हैं कोशिश। मैं भी कह रहा, मैंने कहा इन शैतानों की मस्जिद से तुम्हारी दुकान यहाँ से खाली हो जाएगी, तुम अपनी में करना यार। जी जी जी। तो बोले यहाँ देखो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, और आप भी दुआ करें कि हम इस कोशिश में कामयाब हो जाएं। अल्लाह आमीन।